हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अर्लियर इन द लास्ट चैप्टर आई टोल्ड यू द वेरी बेसिक रूल टू बैलेंस such unbalanced chemical equations. Okay, we have to balance the given chemical equations according to the law of conservation of mass. That is what वो क्या है? That the total mass of reactants, this side reactants, okay, ये reactants है, L left hand side must be equal to that of products, okay, RHS, right hand side, okay. That further implies that the total number of atoms of each element on both sides must be equal. जैसे ये फेरस है, फेरस मीन्स आयरन। ये जो फेरस जो आपका एलिमेंट है, इसमें जो भी इसके जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, बोथ साइड सेम होना चाहिए। इधर देखिए Fe 3, फेरस 3, तो यहाँ देयर आर 3 एटम्स ऑफ फेरस, बट हियर ओनली 1 atom is there. Okay, now next you see here, this is H for hydrogen. Here there are 2 atoms are there of hydrogen, but here 2. Okay. So hydrogen is balanced on both sides. Okay, that is the number of atoms of hydrogen in reactants, that is at the left hand side, are equal to that of right hand side. Then comes oxygen. For oxygen, you know, so here only 1 atom is there. For 1 atom we need not to write it like this. Okay, it is understood. Yes, 1 atom is there for the oxygen at left hand side, but here there are 4 atoms are there for the oxygen. So number of atoms are not balanced, not equal at the both sides, but according to the law of conservation of mass, the number of atoms must be equal on the both sides. Okay, so we need to get it balanced. See here, what is this? So, ferrous 3O4, this is a substance. Okay, it is called, this substance is called ferrous oxide black. Ferrous oxide black. So for the ferrous oxide black, this is the chemical formula. You cannot make in it any change by altering the given atoms, because this alteration, if you go for the alteration of the number of atoms to get the chemical equation balanced, then this will be not okay. So this is the basic chemical formula, and law of conservation of mass says that the total number of mass neither can be created nor can be destroyed. तो आप ना तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, यही डाल दीजिए, जैसे आपने यहाँ सपोज कीजिए आपने 3 डाल दिया है ना, ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते इस तरह से, ना तो आप क्रिएट कर सकते, दिस इज कॉल्ड द क्रिएशन। यदि आप इस तरह से डालते हैं उसको बोलते हैं क्रिएट किया आपने, या फिर आप यहाँ से हटा देते हो इसको, तो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप, तो आप वो भी नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So what to do to get this balanced? Okay, only one method is there, trial and error method. आपको ट्राई करना है until you get the equation balanced. अब ट्राई आप कैसे कर सकते हैं? ट्राई आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें ये देखिए बेसिक ये आपको बनाना है। बिफोर ट्रायल ये था अपना अनबैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड विद दिस, ठीक है। इसका केमिकल फेरस ऑक्साइड ब्लैक का जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है Fe3 फेरस 3 और ऑक्सीजन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको यहां से मिटा दो।
So like this, very simple. First write element, then number of atoms in reactants LHS, number of atoms in products. 3 columns are there. Okay. Next you write down the name of elements which are on the both sides. Like ferrous is there, hydrogen is there, oxygen is there. So number of atoms here, ferrous 1. Okay, at the reactants, this is reactant side. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स बिकॉज दे आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट. ओके, दैट इज फेरस ऑक्साइड ब्लैक. तो आप इस तरह से आप इसको जैसे इसका नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में फेरस का 3, ऑक्सीजन का है इस साइड में, हाँ सॉरी ये ऑक्सीजन का 4 इस साइड में, सॉरी ऑक्सीजन का 4 हियर. और सॉरी ये मिस्टेक हो गई यार, ये हाइड्रोजन का है. तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इधर 2 है, इस साइड में 2 है, और इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 4 है. ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको समझने के लिए मैं कर रहा हूं. ठीक है, बाकी आपको सेपरेटली इसमें एक जो नोट्स जो मैं नोट्स बना रखे हैं पूरे बहुत ही रिसर्च के साथ, ताकि आप साइकोलॉजिकली आप चीज़ों को एक इन ऑर्डर्ड वे, सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मैंने इसमें रखी है नोट्सों में, ताकि आप समझ सकें. ये आपको या तो इसी वीडियो मिल जाएगा, नहीं अलग से मैं लिंक दे दूंगा जिसमें सारे स्कैन कॉपी इसमें लग जाएगी, साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको एज इट इज मिल जाएगा. इसलिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर. ठीक है, सिर्फ आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. ओके, सो लाइक दिस आफ्टर ट्रायल में देखो आप ट्राई करना कैसे. आपको क्या करना है, जैसे बॉक्सेस बना लेने हैं ऐसे, और अलग से जो रफ पेज है उस पे आप जो है अलग अलग आप इसमें रख के वैल्यूज रख के ट्राई आप इसमें कर सकते हैं. जैसे ये है, इस तरह से आप रख सकते हो नंबरिंग, लेकिन नीचे नहीं आता. ये देखो आप इधर रखोगे तो आप जब देखोगे इसमें, अब आप ये देखिए, ये आपको ट्रायल करके ही आपको यहाँ तक पहुंचना है कि आप अलग अलग नंबर्स रखेंगे, फिर देखेंगे दोनों तरफ कि हाँ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है. When you put these numbers, then you will get this result after trial. After trial हम यहाँ तक पहुंचे. ठीक है, ट्रायल आप खुद कीजिए, क्योंकि मैं ट्रायल करूंगा काफी टाइम लगेगा और बोर्ड एग्जाम सर पे है. और आगे जो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम वही ऐसी क्वेश्चंस उठाएंगे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट रही है अब तक एग्जाम्स में, है ना. तो उनको हम देखते हुए चलेंगे साथ साथ, तो आपका सारा कुछ छूटेगा नहीं इसमें. तो इसमें देखिए, फिर अब देखिए बोथ साइड जो है 3 फेरस का. अब देखिए ये जो तो फेरस है, इधर 3 इधर 3, टैली. नाउ हाइड्रोजन इधर 8 उधर भी 8. अब देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन का 8 हो गया. ओके, टैली 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 टैली. नाउ ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन में देखिए दिस साइड 4, दिस साइड 4, तो ऑक्सीजन भी आपका टैली. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन. ये क्या है आपकी, ये इक्वेशन में बैलेंस हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट अब जो है हम इक्वेशंस लेंगे इसमें से, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिए गए हैं. इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम्स पहले हुई थी वहां से वो ऐसे इक्वेशंस मैंने उठाई हैं. ठीक है, जो एग्जाम में पूछते हैं उसमें डायरेक्ट एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट ये नहीं देंगे, ये इक्वेशन देती और सॉरी पूछा कि इसको बैलेंस करो. ऐसा भी बहुत सिंपली ऐसा आता है कि ऐसे दे देंगे पूछेंगे. दूसरी तरीके से क्या होंगे, वो केमिकल नेम इनवर्स देंगे, नेम देंगे आपको, फॉर्मूला नहीं देंगे. जिसका लिख देंगे वो लिख देंगे एग्जाम में कि फेरस ऑक्साइड
ब्लैक डाल देंगे फॉर्मेशन ऑफ दे विल आस्क यू राइट एन इक्वेशन वेयर फेरस ऑक्साइड ब्लैक इज फॉर्म, ठीक है, ये दे दिया, एंड बैलेंस इट। तो आपको क्या है, आपको ये इक्वेशन लिखनी है एकदम स्केलेटन है, ये स्केलेटन इक्वेशन है। स्केलेटन इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, इसमें जो मेन जो 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 जिस न्यू सब्सटेंस का जो इसमें क्रिएशन होता है, ठीक है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसको बैलेंस करने के लिए वो एज इट इज आता है। जैसे कि ये है फेरस ऑक्साइड ब्लैक, ये एज इट इज आएगा, इसका नेम जो है केमिकल नेम इसका ये है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब ये हम क्या है, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है बोथ साइड वो बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस उसको करना है। इस तरह से एग्जाम आएगा, राइट एन इक्वेशन वेयर फेरस ऑक्साइड ब्लैक इज फॉर्म्ड एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो आपको इस तरह से लिखना है, फिर बाद में ठीक है हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये अपना, और जो मेन ओनली एंड ओनली वन मेथड टू बैलेंस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आप ही को करना है, ट्रायल्स, ठीक है। ओके।